Hi friends, this is me Ankit and you're watching NDTV Catches 360. So Maruti has unveiled its first electric car e-Vitara in Bharat Mobility Expo 2025. So today we have a very special guest, Mr. Partho Banerjee, who is the Senior Executive Director, Marketing and Sales. Thank you, Mr. Partho, for giving your time. And Partho, we are from Technology website and my first question is also related to technology. So आप लोगों ने e-Vitara launch किया, इसमें टेक से रिलेटेड क्या क्या नई चीज़ हैं आप मुझे सिंपल शब्दों में एक बार बताएं. Ankit, this is the first electric vehicle which is going to be introduced from the stable of Maruti Suzuki. Okay. And this is a pure EV platform. I think your all viewers will understand what is pure EV platform. Like today, there are many products in the market in which the retrofitment of the battery has happened on the existing ICE platform. Okay. But this vehicle has been made purely for the electric vehicle. It is not going to come in any of the other technology formats like be it the ICE vehicle, nothing. Now, what is the benefit of having this pure EV platform? If you see on the back, this we have shown you the chassis here. Right. It has got a wheelbase of 2700 millimeters. Let me draw your attention that one of the very premium brands, they have got one special branding section of the LWP, long wheelbase. Okay. That happens to be 2800 mm. This one is 2700 mm. How it makes a difference? Fundamentally, you have seen that in the rear side, many of the companies, they give a reclining seat, the backrest. But in case of such a big, long wheelbase, you are able to slide the rear seat. It slides. So there is a huge space on the back. You feel like you're as good as being at home. Second important thing, in a pure EV platform, what it happens is this, you take care of the safety factors. Okay. Now, in case of the battery which we are having it's totally encapsulated in a steel, or I would say a structure. So we have tested this battery under all conditions, be it the pin test, fire test, water test, all aspect it has passed with flying colors. So that's the benefit of a pure EV platform. ओके ओके मिस्टर पार्थो हम एआई पर बात करते हैं कि हाउ मारुति इनकॉर्पोरेटेड एआई इनटू इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. हमें एडास सिस्टम्स कितने पावरफुल्स मिल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपने उसमें जोड़ी हैं, सो उनके बारे में कुछ बताइए. We are going to introduce the ADAS 2 राइट. ओके. in this electric vehicle. So basically whatever the features which are there, almost everything will be provided in this vehicle. The important thing is this, we feel that just providing the product is not only good enough. Creating the ecosystem for that is also equally important. What we are doing is this, how we are going to digitally connect with our customer and going to keep them all the time in touch with us. We have launched a campaign, E for Me. ओके. Now, what is this E for Me? If you carefully see the E, maybe we'll show it to you. It has got two E's embedded in that. One is a smaller E, another is the bigger E. The smaller E is the product, our ecosystems which we are going to introduce. And we feel that if every Indian start imbibing this E, he can contribute to a bigger cause of the sustainability by the mother nature earth, because if everyone does it, it will help us to reduce the carbon footprint on this planet. ओके ओके मिस्टर पार्थो इन इंडिया अभी भी जो लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी को वो एक सेकेंडरी ऑप्शंस के तौर पर देखते हैं, सेकेंडरी व्हीकल्स के तौर पे. तो हाउ कैन यू चेंज द परसेप्शन ऑफ कस्टमर्स कि अगर कोई गाड़ी लेने जा रहा है तो फर्स्ट जो उसकी गाड़ी हो वो ईवी गाड़ी हो. तो आपने उसके लिए- बिल्कुल सही कहा है कि अभी हम ईवी का यदि पेंट्रेशन देखें, लास्ट कैलेंडर ईयर 2.4% था. राइट. और उसके पहले कैलेंडर ईयर में आपका 2.3% था. राइट. जबकि गाड़ियाँ खूब सारी आई हैं. हाँ. मार्केट में आप प्राइजेस भी देंगे काफ़ी करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन पेंट्रेशन नहीं बढ़ रही है. राइट. इसलिए नहीं बढ़ रही है कि आज की तारीख में इंडिया के अंदर में आपको यदि इंटरसिटी है एक गाड़ी चाहिए, इंटरसिटी के लिए एक गाड़ी चाहिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो इसको प्राइमरी कार बनाना है. देखिए, मैं कल के तारीख में इफ़ आई एम गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर और दिल्ली टू चंडीगढ़, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल एंड आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न कि ये गाड़ी कहीं बीच में आउट ऑफ चार्ज ना हो जाए. राइट. तो ये आपने जो कहा, हाउ टू मेक EV as a primary car, not the secondary car. Right. Today people are using it just to go around and come back to home. They are not very comfortable of taking this car for a longer distance. So that's where our role has come. The E for Me, the Maruti Suzuki electric ecosystems which we are creating,
what we are saying is this: we are going to have the charging facility in the top 100 cities. Now, why top 100 cities? आज जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल होती है, 97% happen in the top 100 cities. Right. So more or less we are covering all the cities. And what we are saying, a person buys a car, but let him move. Let him travel to wherever he wants to do. We are going to provide after-sale service and emergency charging facility in 1,000 cities. Okay. So if you are going to from point A to point B, I'm sure from 1,000 cities you can make it out. It will cover almost all of the India. And suppose you're going on a trekking to a hill where maybe practically it is totally in place where there is no habitation. We are creating 300 service on wheels. So which will be there, mobile service on wheels. They will be coming and they will be attending if there are any problems. So I'm sure if we are able to give this sort of a confidence to our customer, this can become a primary car. Nevertheless, still the customer has a concern कि even I'm providing all these things, he feels कि नहीं, still I'm not ready to take the chance. We are coming up with a leasing model also, where we are going to provide the EV customers vehicle on lease. आप बाहर जा रहे हैं, आप मेरे से एक आइस व्हीकल ले लीजिए, Right. घूम के आ जाइए, कोई बात नहीं. Okay. Okay. So I'm sure all these initiatives which we are planning to do will surely help us to reinforce the faith in the consumers that EV can be the primary car. Right. Right. Mr. Pathu, my next question, मारुति को EV सेगमेंट में उतरने में क्या कुछ देर हो गई है? कई आपके OEMs प्लेयर्स ने काफ़ी पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च कर दी थी, सो आपका क्या इस बारे में सोचना है, या मारुति के आने से अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पार्टी अभी शुरू हुई है? आज से 40 साल पहले जब मारुति इस कंट्री में आई थी, तो हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था. राइट. आफ्टर सेल सर्विस पे फोकस किया था कि कस्टमर को यदि हम कॉन्फिडेंस देते हैं, कि तब भी बड़े क्वेश्चन मार्क्स होते थे. उस ज़माने की गाड़ियाँ होती थी, ये गाड़ी आई थी, बहुत ही रेडिकल डिज़ाइन थी, सोच बड़ी अलग थी, चेसिस होती थी, हम मोनोकॉक डिज़ाइन लाए थे, तो लोगों को काफ़ी कंसर्न्स थे. रेस्ट इज़ ऑल हिस्ट्री. सो वी फील द टाइम हैज़ अगेन कम. इन EV स्पेस ऑल्सो हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं. हमें गाड़ी बेचने की कोई जल्दी नहीं है. ओके. यदि हम कस्टमर को एक अच्छा सर्विस देंगे, अच्छी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे, आई एम श्योर द नंबर्स विल कम. ओके. ओके. एंड मिस्टर पार्थो, EVs की बात करते हैं तो आप नेक्स्ट जब इंडिया ई-मोबिलिटीज़ ट्रांजिशन हो रहा होगा, तो अगले 5 से 10 सालों में आप मारुति को कहाँ कैसे देखते हैं? देखिए, 2030-31 की बात कर सकता हूँ. इंडस्ट्री हमारी जो अनुमान है 6 मिलियन होगी, और EV उसमें इंडस्ट्री में 1 मिलियन होगी. ओके. मोटा मोटा प्लस माइनस 1-2% हो सकता है. तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे भी आपकी जो होगी हाइब्रिड गाड़ियाँ भी होंगी मार्केट के अंदर में. हाइब्रिड गाड़ी होगी तो आइस की भी गाड़ियाँ होंगी. राइट. CNG ऑप्शंस भी होंगे, फॉसिल फ्यूल्स के और डिफरेंट अवतार्स में आएंगे, फ्लेक्स फ्यूल होंगे, हो सकता है हाइड्रोजन भी आ जाए. तो कहने का मतलब ये है कि वी बीइंग द मार्केट लीडर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको कस्टमर को ऑप्शन देना चाहिए और टेक्नोलॉजी ही वुड लाइक टू यूज़ बेस्ड ऑन हिज नीड एंड ऑल द फॉर्म फैक्टर्स ऑल्सो. ओके. लेट द कस्टमर डिसाइड what suits him the best. सो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि जितने आपके आइस मॉडल हैं आप उन सबको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे, या आप नए प्लेटफॉर्म्स पर नई गाड़ियाँ लॉन्च करते रहेंगे? क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए अंकित जी, क्योंकि कई सारे मार्केट लीडर होके हम बड़े क्लियर हैं कि हम सारे फॉर्म्स में रहेंगे. ओके. हम हर तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे. Okay. लेट द कस्टमर डिसाइड. सो इन फ्यूचर हमें जो आइस वर्जन्स हैं, इन्विक्टो, ब्रीजा, इन सब के भी इलेक्ट्रिक वर्जन देखने को मिलेंगे? मैंने आपको ये नहीं कहा कि इन्विक्टो या ब्रेजा या इनका होगा. मैंने ये कहा है कि हम कस्टमर को ऑप्शंस देंगे. ओके. हर फ्यूल ऑप्शंस में, और हम उनको हर फॉर्म में देंगे. ये मैं आपको कह सकता हूँ. ओके. आपके पास हाइब्रिड्स भी हैं, सेमी हाइब्रिड्स भी हैं, देन EVs भी, आपका पोर्टफोलियो लगातार बढ़ रहा है, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक के लिए एक अलग आइडेंटिटी आप
शोरूम्स में आप लॉन्च करें, जस्ट लाइक टाटा ने इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जहाँ पर वो सारी ईवीज़ गाड़ियाँ लॉन्च कर रहा है, तो आपकी इन फ्यूचर कोई स्ट्रेटजीज है सर? देखिए, हम बिलीव करते हैं ना, कस्टमर को हमें सारे ऑप्शन देने चाहिए। वो भी नहीं होना चाहिए कस्टमर को कोई गाड़ी लेनी हो तो दूसरी जगह जाओ, ये गाड़ी लेनी है तो इधर आओ। वी फील दैट एवरीथिंग अंडर वन रूफ इज मच बेटर। ओके, Nexa is all about giving the customer the convenience under one platform. तो हम आपकी आइस गाड़ी हो, हाइब्रिड हो, ईवी हो, हम सारी गाड़ियों का ऑप्शन कस्टमर को नेक्सा शोरूम के थ्रू दे रहे हैं। ओके, ओके। एंड मिस्टर पार्थो, थोड़ा सा इस बात में बताइए कि आइस वर्जन के जो यूज़र्स हैं और जो इलेक्ट्रिक गाड़ी के यूज़र्स हैं, उनका कुछ माइंडसेट में कुछ डिफरेंस है? ये जो ईवी व्हीकल की जो कस्टमर्स हैं, ये सेगमेंट टू सेगमेंट बहुत वेरी करते हैं। ओके, जो नीचे के लेवल पे होते हैं वो बिल्कुल सिर्फ TCO देखते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या होगी। ओके, जो ऊपर सेगमेंट का कस्टमर होता है उसके लिए ये बहुत बड़ी प्राइड की बात होती है कि एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, टू माई मदर नेचर अर्थ। उनकी सोच थोड़ी अलग होती है। ओके, बट एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, जो ईवी व्हीकल जो ऊपर के सेगमेंट में आदमी लेता है, ही इज़ वेरी प्रोग्रेसिव ओके, and he is looking for new technologies, and he wants to be part of the mission of how I can be contributing to the planet. सो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी रहेगी? क्योंकि मोस्टली जो अभी तक का जो एक ट्रेंड है वो लोग बैटरीज को लेकर बड़ा परेशान रहते हैं, तो आपका आफ्टर सेल्स सर्विस को लेकर आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमने बैटरी को टेस्ट किया है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। स्नो टू सैंड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने इसको टेस्ट किया है, एंड इट हैज़ पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। ओके, Coming to all the test, I think we have showed it in the Bharat Mobility Show, be the pin test, be the fire test, be the water test. There is no more test which I need to show basically to prove the point that this battery has been tested under all extreme conditions and it has passed with flying colors. सो आपको लगता है कि इंडियन कंज्यूमर अभी इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए रेडी है, या आपको उससे कुछ लीज मॉडल जस्ट लाइक किलोमीटर वाइज जैसे कई OEMs ने शुरू किया, आपको भी वो शुरू करना पड़ेगा? या I think in India still the customer feel ownership is better ओके, ओके, than the leasing. क्योंकि आज की तारीख में भी इंडिया के अंदर में आप यदि देखेंगे, हर आदमी की चार्ज होती है कि एक घर हो और एक गाड़ी। गाड़ी। सो फर्स्ट वो ईवी हो और मारुति की हो, तो आप ये कहना चाहते हैं? वो तो हम कस्टमर को ऑप्शन सब दे रहे हैं। ओके, ईवी हो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो, स्मार्ट हाइब्रिड हो, CNG हो, ऑल टेक्नोलॉजीज वी हैव। इस कैलेंडर ईयर के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो हमें ई विटारा के बाद और नेक्स्ट लॉन्चेस देखने को मिल सकते हैं? वो तो जब आएगा हम आपको फिर आपसे बात करेंगे और हम आपको बुलाएंगे। स्ट्रेटेजी की हम 30 by 2030 we are going to launch 5 electric vehicles. ओके, So ओके, this is the first one which has come. ओके। That much I can tell you. सो वो कैटेगरी वाइज होगा, हैचबैक और सारी सेगमेंट्स में ही? That will let you know. ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। एंड माई लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि ई विटारा आपने लॉन्च जब भी आप करेंगे तो इसका प्राइस जो होगा वो अप्रॉक्स अपने कॉम्पिटिटर महिंद्रा के अकॉर्डिंग होगा 15 to 20 लाख, अगर कुछ उस पे आप बताना चाहें? या अंकित जी, economical? हमने जब अभी भारत मोबिलिटी में कैंपेन किया था, हमने उसमें एक चीज़ बोला था, हाँ, ई विटारा राइट, वर्थ द वेट। तो Okay. मैं ये जरूर कह सकता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि दिस कार इज वर्थ द वेट टू ऑल योर व्यूअर्स। ओके। एंड डू यू वांट नीड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमें गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ईवी सेगमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा, या अभी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो काफ़ी लो? देखिए, जो भी चीज़ आज की तारीख में ईवी हो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो, दे ऑल आर बेसिकली हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट, ओके, and each country is having their roadmap and each OEM is working on it. So my personal opinion is this: whichever model which helps us in giving us a better reducing the carbon footprint, we should promote all the technologies. okay. Thank you, Mr. Partho, for giving your time. And if you like this video, so please comment, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।